Today our topic is typical components of an operating system. Typical components means सामान्य घटक. In this section, we briefly discuss the components typically associated with an operating system and the full environment surrounding the operating system. Keep visiting figure 5.1 while reading the descriptions. This figure provides a simplified layered view of the operations of the computer system in the context of operating system study. तो ये सेक्शन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चारों ओर जो वातावरण फैला है और उससे जुड़े जो सामान्य घटक है मीन्स टिपिकल कंपोनेंट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है द डिवाइस ड्राइवर. एट द लोएस्ट लेवल इज़ द रो हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर. As we have seen earlier, this part often called the raw iron is an immensely powerful machine but has no clue as what to do. This layer also consists of a diverse set of devices, each requiring potentially different set of instructions to operate. The device drivers are small program that contains the instructions necessary for using these devices, while many of them come bundled with the operating system. Some may have to be installed separately from a disk or the internet. They are loaded and unloaded as and when needed by the kernel. The kernel uses them for operating and controlling the hardware. तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि रो आयरन कहलाने वाला जो एक भाग वो बहुत शक्तिशाली मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है. ओके, परंतु क्या करना इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और उस लेयर में बहुत सारे डिवाइस है उनका सेट होता है. प्रत्येक को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का भी सेट होता है. डिवाइस ड्राइवर छोटे प्रोग्राम है जिनमें इन डिवाइसों का यूज़ में लेने की ज़रूरी इंस्ट्रक्शन भी होती है और इनमें से कई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं जबकि कई अलग से डिस्क या इंटरनेट से इंस्टॉल किए होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वे कर्नल द्वारा लोड या अनलोड भी किए जाते हैं और कर्नल उनका यूज़ हार्डवेयर को ऑपरेट या फिर कंट्रोल करने के लिए करता है. नेक्स्ट इज़ द kernel. The kernel is the core component or the main program of the operating system. A traditional kernel performs all the key functions of an operating system, including detecting new hardware when attached and loading appropriate device drivers to access it. Assessing and controlling all hardware devices through the device drivers, resource allocation and management, creating, stopping and controlling program execution, scheduling program execution, providing CPU I/O and memory protection means I/O management, memory management, security etc. By some definitions, the kernel is the operating system. तो जो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट या मेन प्रोग्राम है. कर्नल अटैच करते समय नए हार्डवेयर डिटेच करना और डिवाइस ड्राइवरों को एक्सेस करने के लिए ठीक तरह से लोड करना और सभी हार्डवेयर डिवाइसों को एक्सेस और कंट्रोल करना, रिसोर्सों को एलोकेट और मैनेज करना, क्रिएट करना, प्रोग्राम संचालन को स्टॉप करना, कंट्रोल करना. ओके, प्रोग्राम संचालन को शेड्यूल करना, CPU I/O और मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, I/O मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जैसे ये जो सारे फंक्शंस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी मुख्य फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इन कुछ व्याख्याओं से कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, सो सी दिस इज़ द फिगर 5.1 द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द शेल. द शेल इज़ most visible component of an operating system bundle, so much so that most people identify the operating system by the look of the shell. ओके, तो ये जो शेल है वो क्या है, विजिबल कंपोनेंट है जिससे बहुत सारे लोग उसे शेल के लुक के रूप में भी जानते हैं.
The shell allows the user to express their wishes, what they want the computer to do to the computer system by providing a user interface means UI. The full form of UI is user interface. There are two main categories of user interface. Okay, यूज़र इंटरफेस है उसकी दो कैटेगरी से. फर्स्ट है अ कमांड लाइन इंटरफेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है CLI, एंड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है GUI. ओके, तो ये आपको एग्ज़ाम में आएगा कि यूज़र इंटरफेस की दो कैटेगरी कौन सी है. फर्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, CLI एंड GUI. The CLI expects only a low-cost, low-power text-based terminals. It works by repeatedly accepting textual commands from the users and executing them. Our needs to remember the commands through help may be available, and the certain level of typing skills are needed to operate such a system. In the early days of computing, when technology was not yet advanced, the CLI was the only option. Later on, the graphical user interface was developed. तो आपको जिससे पता ही होगा कि कंप्यूटिंग है उसके स्टार्टिंग के दिनों, अर्लीस्ट डे में, जब टेक्नोलॉजी का इतना सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब CLI केवल मात्र एक ऑप्शन था, और उसके बाद में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी डेवलप हुआ और उसका भी हम अभी यूज़ करते हैं. In the GUI environment, the screen contains pictorial elements like a desktop that acts as a background for everything else. Windows in bracket, a rectangular portion of a screen dedicated to a particular program or interaction. Icons. Icons means small pictures representative of programs and other elements. Menus. Menus means a list of actions from which the user may select one. And buttons means small rectangular area that react to a mouse click, etc. The later elements belong to a particular window. The windows may hide behind other windows and reappear and can often be moved around or resized, minimized to a small part of at the bottom of the screen, minimized to occupy the whole screen, etc. Apart from the keyboard for input, there is a mouse pointer that can be moved around using a mouse or trackpad. There are 1 to 3 buttons that can be clicked and a scroll wheel or scroll area too. तो जो GUI एनवायरनमेंट में स्क्रीन पर डेस्कटॉप जो किसी भी चीज़ के लिए बैकग्राउंड की तरह वर्क करता है. विंडोज़ मीन्स विशेष प्रोग्राम या इंटरेक्शन को समर्पित किया गया स्क्रीन, या फिर उसे क्या कहते हैं, आयताकार भाग. आइकॉन मीन्स प्रोग्राम और अन्य तत्वों के छोटे चित्र, रिप्रेजेंटेटिव, एकदम स्मॉल चित्र होते हैं, पिक्चर्स होते हैं. आइकॉन मीन्स. मेनू मीन्स एक्शनों की सूची, सूची मीन्स लिस्ट, तो एक्शन की लिस्ट जिसमें से यूज़र कोई भी एक सिलेक्ट करता है और वर्क करता है. बटन मीन्स जो छोटे कौन से शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में जो बटन्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कि छोटे आयताकार एरिया जो माउस क्लिक पर रिएक्ट करते हैं उसे हम बटन कहते हैं. ओके, ये सारे होते हैं बैकग्राउंड के. बाद के तत्व एक विशेष विंडो के होते हैं. विंडोज़ को अन्य विंडोज़ के पीछे छुपाया भी जा सकता है और उन्हें फिर से दर्शाया और चारों ओर घुमाया भी जा सकता है, मूव किया जा सकता है, या फिर रिसाइज मिनिमाइज़ करके स्क्रीन के बॉटम में छोटे स्वरूप में मैक्सिमाइज़ करके पूरे स्क्रीन पर दर्शाया जा सकता है. ओके, मिनिमाइज़ करके उसे छोटा किया जाता है और मैक्सिमाइज़ करके उनको पूरी स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है. इनपुट के लिए कीबोर्ड के अलावा एक माउस पॉइंटर जिसे माउस या ट्रैक पैड पर चारों ओर घुमाया जा सकता है. ओके, कीबोर्ड के अलावा माउस पॉइंटर को ट्रैक पैड पर रख के मूव किया जाता है. माउस पर एक जैसे 3 बटन्स होते हैं जिन पर क्लिक किया जा सकता है और एक स्क्रॉल व्हील या उसे स्क्रॉल एरिया भी होता है. नेक्स्ट इज द फाइल सिस्टम. The operating system provides a file system interface to secondary storage.
The concept of a file system is modeled after the filing cabinets commonly found in offices, but with new twists. A file system chiefly contains two types of objects, files and directories. Directories means also known as folder. ओके, फाइल और फोल्डर, तो ये दो टाइप्स है. A file is the basic unit of secondary data storage on computers. Any data that the user wants to store will go in some file in the file system. The files are identified by their names, which are much easier for humans to remember than absolute addresses known as block numbers. As a disk may have a large number of files, directories are used to organize them. A directory is nothing but a container that may contain files as well as other directories known as its subdirectories. In fact, there is no theoretical limits to such nesting, means putting one container object inside another. However, every file system starts with what is called its root directory, and then the root directory may be concept. Here the green nodes represent directories, means indicate by D, while the blue ones represent file, indicate by F. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज को एक फाइल सिस्टम में इंटरफेस प्रोवाइड करती है, और कार्यालय में जो सामान्यतः फाइल है उसे भरे कबाटों के कॉन्सेप्ट पर फाइल सिस्टम या मॉडल तैयार किया गया है, वो आप यहाँ नीचे देख सकते हो. ओके, परंतु एक नए ट्विस्ट के साथ फाइल सिस्टम में दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज़ फाइल और सेकेंडरी क्या था, फोल्डर. कंप्यूटर पर फाइल सेकेंडरी डेटा स्टोरेज की मूलभूत कंटेंट है, मेन कंटेंट है. यूज़र जिस डेटा को स्टोर करना चाहे वह फाइल सिस्टम की किसी भी फाइल में चला जाएगा, और फाइलों को उनके नाम से भी पहचाना जाता है. हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइल को नाम देकर, जो व्यक्तियों के लिए ब्लॉक नंबरों के रूप में जाने जाते एब्सोल्यूट एड्रेस की बजाय याद रखना ज़्यादा सरल होता है. जैसे कि डिस्क में बड़ी संख्या में फाइल्स होती है और उन्हें कलेक्ट करने के लिए उन्हें फोल्डर्स का यूज़ हम करते हैं, और फोल्डर और कुछ नहीं बल्कि फाइलों और अन्य गौण जो फोल्डर्स है उनको रखने वाला एक कंटेनर है. और हकीकत में ऐसे नेस्टिंग मीन्स एक कंटेनर ऑब्जेक्ट को दूसरे में रखना, ये कोई सैद्धांतिक उसकी सीमा नहीं होती है. प्रत्येक फाइल सिस्टम की शुरुआत उसके रूट से होती है, और फिर रूट फोल्डर फाइलों और जो गौण मीन्स सब फोल्डर फाइल है उनको कंटेन करती है, और ये क्रम हम जारी रखता है. तो यहाँ पर जो आपको फिगर दिया है उसमें क्या दिया है, जो डायरेक्टरीज है उनको डी है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डी. यहाँ पर आपको जहाँ पर डी दिख रहा है मीन्स ग्रीन पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरीज, और जो ब्लू पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, फाइल्स. उसका शॉर्ट फॉर्म है फाइल दिया है. ओके, द फाइल सिस्टम follow certain basic rules. Each file system has a single root directory that is the starting point of the file system. Each directory in the file system contains a number of objects, means files and directories, each of which must have a name unique within that directory. Thus, there can never be two objects with the same name in the same directory. However, two different directories can have two different objects with the same name, as long as you know the directory containing the object you want to use. Knowing its name may be enough, as it is guaranteed to be unique within its directory. Otherwise, you will have to specify the absolute means or full path leading to the object. That is, you start with the root directory, then the subdirectory, and
so on until you reach to the directory that contains the objects in question and finally the object itself. Each of these components is separated by a special character that is not permitted in file or directory names. This uniquely identifies an object in the entire file system. फाइल सिस्टम कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स है उनका पालन करती है, उनको फॉलो करती है और ईच फाइल सिस्टम की मीन्स प्रत्येक फाइल सिस्टम की एक सिंगल रूट डायरेक्टरी होती है जो फाइल सिस्टम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। फाइल सिस्टम में प्रत्येक डायरेक्टरी में ढेर सारे ऑब्जेक्ट मीन्स फाइल और डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक का उस डायरेक्टरी में यूनिक नेम होता है। इस प्रकार एक ही डायरेक्टरी में एक ही नाम वाले दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। मीन्स एक ही नाम के एक डायरेक्टरी मीन्स एक फोल्डर में एक नाम के दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, पर दो अलग अलग फोल्डर में एक नाम वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी में होता है और उस नाम का वो डायरेक्टरी में एक ही होता है, ये फिक्स है। या फिर आपको उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए पूरा मार्ग आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मीन्स रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप सब डायरेक्टरी है और इस तरह आगे जब तक उस डायरेक्टरी तक नहीं पहुंचते हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जेक्ट है और लास्ट में उस ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं। इन कंपोनेंट्स में से प्रत्येक को एक विशिष्ट कैरेक्टर द्वारा अलग किया जाता है जो फाइल या डायरेक्टरी नामों में परमिट नहीं किया गया है और ये सारी फाइल सिस्टम में ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई भी करता है। A blank disk initially contains no file system. The initial blank file system structure is created by an operation known as formatting the disk. Formatting a disk that already contains a file system destroys the existing file system and replaces it with a new blank one. Certain types of disks such as the hard disk can contain multiple partitions. Each partitions may be formatted to contain a separate and independent file system. Formatting one partition does not affect the others. The operating system provides utilities for viewing, modifying and formatting the disk and their partitions. एक ब्लैंक डिस्क में शुरुआती कोई फाइल सिस्टम नहीं होती है। इनिशियल ब्लैंक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एक ऑपरेशन द्वारा क्रिएट किया जाता है जिससे डिस्क को फॉर्मेटिंग कहते हैं या जिससे क्या कहते हैं डिस्क का फॉर्मेटिंग। डिस्क को फॉर्मेट करने से उसमें पहले से ही रही फाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाती है और न्यू का समावेश हो जाता है रिप्लेस हो जाता है। हार्ड डिस्क जैसी कुछ डिस्कों में मल्टीपल पार्टीशन होते हैं और प्रत्येक पार्टीशन का यूज़ एक अलग और इंडिपेंडेंट फाइल सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए किया जा सकता है। एक पार्टीशन को फॉर्मेट करने से दूसरे पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और उनके पार्टीशनों को व्यू करने, मॉडिफाई करने और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा भी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग system. Linux generally uses some versions of an extended file system ext2, ext3 or ext4. Though several others are also available and in use. These are quite powerful and feature-rich file system. The extended file system is case sensitive. For example, capital and small letters are treated as two different characters. So you may have two files with the names F1 means small में F1 है और capital में F1 in the same directory. It uses the slash character as the path separator. The concept of using the extension part of the file name to signify its type is not mandatory and it's weakly used. USB flash disk and memory cards used with mobile
phones usually come formatted with the FAT file system, but the former can be reformatted as NTFS to obtain the benefits of performance and some security. CDs generally use the ISO 9660 file system, while DVDs use the UDF file system. These different file systems have different characteristics. Linux जनरली एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम जैसे कि ext2, ext3 और ext4 की कुछ आवृत्ति का यूज़ करता है। हालांकि कुछ अन्य भी उपलब्ध और उपयोग में है, मीन्स यूजेस में है, और ये बहुत पावरफुल और रिच क्वालिटी वाले, रिच फीचर वाले फाइल सिस्टम में है। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है, जैसे कि कैपिटल और स्मॉल लेटर को अलग अलग कैरेक्टरों वाले होते हैं, इसलिए आप एक ही डायरेक्टरी में दो फाइल्स F1 एंड दिस इज़ F1, बट ये जो फर्स्ट है वो स्मॉल है और ये कैपिटल है। तो यहाँ ये जो स्लैश कैरेक्टर है, ओके, उसका भी यूज़ पाथ को सेपरेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं। फाइल के टाइप सिग्निफाई करने के लिए फाइल नेम के एक्सटेंशन पार्ट का यूज़ करने का कॉन्सेप्ट आवश्यक नहीं है और उसका यूज़ बहुत हम कम करते हैं। मोबाइल फ़ोन के साथ उपयोग किए जाते USB फ्लैश डिस्क और मेमोरी कार्ड FAT फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट किए होते हैं, परंतु फॉर्मेट को फिर से परफॉर्मेंस और कुछ सिक्योरिटी के लाभ प्राप्त करने के लिए NTFS के रूप में रीफॉर्मेट किया जा सकता है। CD जनरली ये ISO 9660 फाइल सिस्टम का, जबकि DVD UDF फाइल सिस्टम का यूज़ करती है, और ये अलग अलग फाइल सिस्टमों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज GUI एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Everything that comes with the operating system is theoretically changeable except the kernel. The device drivers, the shells, the libraries and the utility programs can all be changed without changing the operating system. In fact, some free and open sources operating system like Linux provide a number of choices for each of these, and through some proprietary operating system do not offer a choice in shells or utilities. Such choices are available from third-party vendors as well as the open source community. Hence, identify an operating system based on these components, the open source community. Hence, identify an operating system based on these components would be a fallacy. These considerations have given rise to a definition that the kernel and only the kernel is the operating system. All other things are changeable and hence are just auxiliary accessories. कर्नल के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रत्येक वस्तु सैद्धांतिक रूप से चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किए बिना डिवाइस ड्राइवर, शेल, लाइब्रेरी और यूटिलिटी प्रोग्राम भी चेंज किए जा सकते हैं, और हकीकत में लिनक्स की तरह कुछ फ्री और ओपन सोर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से प्रत्येक के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रदान करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर भी कुछ मालिकी हक के ऑपरेटिंग सिस्टम शेलों या यूटिलिटियों में विकल्प ऑफर नहीं करते हैं। ऐसे विकल्प थर्ड पार्टी जो विक्रेता है उनको और ओपन सोर्स कम्युनिटी से उपलब्ध होते हैं, और इन घटकों पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचानना एक दोषयुक्त दलील होगी। इन दलीलों के आधार पर दी गई व्याख्या पहली व्याख्या से बिल्कुल विरुद्ध है। कर्नल और सिर्फ कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी अन्य वस्तुएं परिवर्तनशील है, मीन्स चेंजेबल है, और वो सहायक एसेसरीज है।
Users often mistakenly associate a particular user's experience with a particular operating system, but they forget that the user experience is provided by the shell and the shell is changeable. To emphasize these facts, just look at the 4 screenshots in figure 5.3 and try to identify the operating system. In each case, we will not be able to differentiate between these screens to a large extent. Here, the upper 2 screenshots were taken on Windows system while the lower 2 were taken on Linux system. तो यूज़र ज़्यादातर भूल से पर्टिकुलर यूज़र एक्सपीरियंसेस को पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंसेस शेल द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं और शेल चेंजेबल होते हैं, मीन्स परिवर्तनशील होते हैं। और ये हकीकत को समझने के लिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट्स। तो इसमें ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टमों का GUI। इसमें जो ऊपर के 2 स्क्रीनशॉट है वो विंडोज़ सिस्टमों पर आधारित है और जो नीचे है 2 स्क्रीनशॉट वो लिनक्स सिस्टमों से लिए गए हैं।